سفارش احمد ندیم قاسمی۔ محلے کی بڑی گلی کے موڑ پر 3-4 تانگے ہر وقت موجود رہتے ہیں، مگر اس روز میں موڑ پر آیا تو وہاں ایک بھی تانگا نہیں تھا۔ مجھے خاصی دور بھی جانا تھا اور جلدی بھی پہنچنا تھا، اس لیے تانگے کا انتظار کرنے لگا۔ تانگے تو بہت سے گزرے مگر سب لگے ہوئے تھے۔ اچانک میں نے فیکے کوچوان کو اپنی طرف آتے دیکھا تو پکارا، بھئی فیکے، تانگا کہاں ہے؟ تانگا لاؤ نا۔ تانگا تو بابو جی آج نہیں جوڑا ہے، فیکے نے جواب دیا۔ میں نے دیکھا کہ فیکا جو کوچوان کا کوچوان اور پہلوان کا پہلوان تھا، اس نے آج شیو بھی نہیں بنوایا تھا۔ اس کی آنکھیں بھی سرمے سے محروم تھی اور بوٹی کی طرح سرخ ہو رہی تھی۔ کیا بات ہے فیکے؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولا، بابو جی ایک کام ہے۔ ہاں ہاں کہو، میں نے کہا۔ کام یہ ہے بابو جی کہ آپ میرے بابا کو تو جانتے ہیں نا؟ فیکا بولا، اس کی ایک آنکھ چلی گئی ہے۔ اوہو، مجھے دکھ ہوا۔ کیسے گئی؟ کیا کوئی حادثہ ہوا؟ جی نہیں۔ فیکے کے چہرے پر بھول پن کا چھینٹا پڑ گیا۔ لال لال تو وہ ہر وقت رہتی تھی اور اس میں سے پانی بہتا رہتا تھا۔ آپ تو جانتے ہیں، آپ تو بابا کے ساتھ کئی بار تانگے پر بیٹھے ہیں۔ تو بابو جی کل کیا ہوا کہ بابا بسری شاہ میں سے گزرا تو ایک حکیم سرما بیچ رہا تھا۔ بابا یہ سرما لے آیا اور ہمیں بتایا کہ اس سے آنکھ کی لالی جاتی رہے گی۔ حکیم نے خدا رسول کی قسم کھا کے کہا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ نہ جائے تو قیامت کے دن مجھے گردن سے پکڑنا۔ میں نے بھی کہہ دیا کہ حکیم خدا رسول کو بیچ میں ڈال رہا ہے تو ذرا سا لگا لے۔ اماں نے بھی یہی صلاح دی۔ اس نے لقمان حکیم حکمت کا بادشاہ پڑھا اور آنکھ میں سلائی پھیر لی۔ بس پھر کیا تھا بابو جی، قسم کھا کر کہتا ہوں جب سے اب تک آنکھ لگی ہو۔ بابو جی آپ تھک تو نہیں گئے؟ سگریٹ والے کی کرسی اٹھا لاؤں؟ اس وقت فیکا مجھے ایسے لگا جیسے اس کے چوڑے چکلے سینے پر گڈے کا حیران سر رکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا، تم بھی حد کرتے ہو فیکے، اب آگے بھی کہو نا۔ فیکے کی آنکھوں میں ممنونیت کی نمی جاگی۔ وہ بولا، بس بابو جی خدا آپ کا بھلا کرے۔ رات تو چیخ چاخ کے گزار دی، پھر صبح کو محلے کے سارے کوچوان اکٹھے ہوئے تو ان میں سے چچا شیدے نے کہا کہ پوست کے ڈوڈے پانی میں ابالو اور اسی پانی سے آنکھ دھوئی، پر بابا اسی طرح تڑپتا رہا۔ پھر کسی نے کہا کہ پالک کا ساگ ابال کر باندھا، اور جب کھولا تو بابا نے صاف کہہ دیا کہ اب کیا جتن کرتے ہو، آنکھ کا دیا تو بجھ گیا۔ ہمارے گھر میں تو پٹس پڑ گئی بابو جی۔ اسے ایک ہسپتال میں لے گئے، پھر دوسرے میں لے گئے، دونوں میں جگہ نہ تھی۔ دوپہر کو راج گڑھ کے کوچوان نے بتایا کہ اس کا سالہ میو ہسپتال میں چوکی دار ہے۔ اس کی سفارش سے جگہ تو مل گئی، پر برانڈے میں، وہ بھی کوئی ایسی بات نہیں۔ پر بابو جی شام ہونے کو آئی ہے اور ابھی تک کوئی ڈاکٹر تو کیا کوئی نرس بھی ادھر نہیں آئی۔ آپ صاحب لوگ ہیں، یہ دیکھیے ہاتھ باندھتا ہوں، میرے ساتھ چل کر کسی ڈاکٹر سے یہ کہہ دیجئے کہ صدیق کے مریض کو ذرا سا دیکھ لے۔ میں نے کہا، وہاں ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر عبدالجبار، ان سے میرا سلام کہو، کام ہو جائے گا۔ نہ ہوا تو کل میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ اس وقت مجھے ایک دعوت میں جانا ہے، نام یاد کر لو، ڈاکٹر عبدالجبار۔ فیکا میرے بہت سے شکریہ ادا کر کے چلا گیا۔ پھر مجھے ایک خالی تانگا مل گیا۔ جب تانگا میو ہسپتال کے صدر دروازے کے سامنے سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ فیکا ایک چوکیدار سے باتیں کر رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ ڈاکٹر جبار کا پتہ پوچھ رہا ہوگا۔ ایک بار جی میں آئی کہ ہسپتال جا کر جبار صاحب سے کہہ دوں، مگر اب تانگا آگے نکل گیا تھا اور مجھے پہلے ہی دیر ہو گئی تھی۔ کچھ دور جا کر گھوڑا پھسل کر گرا اور 10 منٹ تک گرا رہا۔ پھر جب اٹھا اور چلنے لگا تو یکایک جبار صاحب کا سکوٹر میرے تانگے کے قریب سے زن سے گزر گیا۔ جبار صاحب، میں چلایا، مگر جبار صاحب
मेरी आवाज से तेज निकले। कोई बात नहीं, मैंने सोचा, कल कह दूंगा, कल पहला काम ही यही करूंगा। रात को मैं घर वापस आया तो मालूम हुआ कि फीका कोचवान आया था और कह गया था कि बाबूजी आए तो मुझे बुला लें। मैंने सोचा, इस वक्त कौन बुलाए? अगर जबार साहब अस्पताल ही को जा रहे थे और फीके का काम हो गया है तो शुक्रिया शुभ कबूल कर लूंगा, और अगर काम नहीं हुआ तो जो भी कोशिश होगी शुभ ही को होगी। सुबह को मैं अभी बिस्तर से नहीं निकला था कि फीके ने दरवाज़ा खटखटाया। मालूम हुआ कि रात जबार साहब ड्यूटी पर नहीं थे, उनकी ड्यूटी 8 दिन की है। यानी तुम्हारा बाप दिसंबर की इस सर्दी में बरामदे ही में पड़ा रहा? मैंने अपने अंदाज में तशवीश ज़ाहिर की। जी हाँ, वो बोला, मगर ये तो कोई ऐसी बात नहीं बाबूजी, आपने हमारा घर नहीं देखा? 10 साल से छप्पर में पड़े हैं। और उसकी आंख? मैंने पूछा। वो तो चली गई बाबूजी। फीका यूं बोला जैसे उसकी बाप की आंख को जाए हुए बरसों गुजर चुके हैं। मैंने कहा, जब आंख जा ही चुकी है तो बेचारे बूढ़े को अस्पताल में क्यों घसीटते फिरते हो? वक्त भी जाया होगा, रुपया भी जाया होगा। फीका बोला, बाबूजी क्या पता, आंख के किसी कोने खदरे में बिनाई का भोरा पड़ा रह गया हो। देखिए, चूल्हा बुझ जाता है तो जब भी देर तक राख में हाथ नहीं डालते, क्या पता कोई चिंगारी सुलग रही हो। मैं इस बात से चौंका। आज तक फीके ने मुझसे सिर्फ चारे की महंगाई और आटे में मिलावट के मौजू पर बातें की थी। फिर वो आर्जी से बोला, जरा सा मेरे साथ चले चलिए। मेरे जिस्म में नींद अभी पूरी तरह गायब नहीं हुई थी। फिर नहाना था, शेव करना थी, चाय पीनी थी। मैंने कहा, मैं तुम्हें अपना कार्ड दे देता हूं, वो डॉक्टर जब्बार को दिखा दो, बड़े यार आदमी है, फटाफट काम कर देंगे। तुम्हारा बाप एक बार वार्ड में चला जाए, फिर इलाज के लिए तो मैं खुद जाकर कहूंगा। वो मुझसे कार्ड लेकर यूं चला जैसे दुनिया जहान की दौलत समेटे लिए जा रहा है। मैंने कार्ड पर लिख दिया था, जवार साहब, इसका काम कर दीजिए, बेचारा बड़ा ही गरीब आदमी है, दुआएं देगा। और मुझे यकीन था कि काम हो जाएगा। डॉक्टरों को सिर्फ इतना ही तो देखना था कि आंख पूरी तरह बुझ गई है या थोड़ी बहुत रमक बाकी है। मैं दिन भर घर से गायब रहा और फीका दिन भर मेरे घर के चक्कर काटता रहा। शाम को उसने मुझे बताया कि जबार साहब बैठे तो हैं पर कोई अंदर नहीं जाने देता, कहते हैं बारी से आओ, और मेरी बारी आती ही नहीं। घुटना पाजामे में से झांक रहा हो तो बारी कैसे आए बाबूजी? फीके ने मुझे एक बार फिर चौंका दिया। जाने पहलवान फीके के अंदर से ये हसास फीका इतने बरसों से कहां छुपा बैठा था। मैंने वादा किया कि कल जरूर चलूंगा। अब तो शाम हो गई है। दूसरे दिन सवेरे ही मुझे शेखुपुरे जाना पड़ गया। रात को वापस आया तो मालूम हुआ कि फीका आया था। उसके बाद 3 दिन तक मैंने ज्यादा वक्त घर में गुजारा, मगर फीका ना आया। चौथे रोज मैंने गली के मोड़ पर एक कोचवान से फीके के बाप का पूछा तो मालूम हुआ कि उसे वार्ड में जगह मिल गई है। इतने में फीका भी आ निकला। मुझे जरा सी नदामत थी, इसलिए झूठ बोलना पड़ा। क्यों फीके, जबार साहब ने काम कर दिया ना? वो बोला वो बोला मगर बाबूजी, वो तो मुझसे मिले ही नहीं। मैंने फौरन कहा, मैंने उन्हें फोन कर दिया था। फीके का चेहरा एकदम सुर्ख हो गया और उसकी आंखों में ममनूनियत की नमी जाग उठी। जब ही मैं कहूं, नर्स बार बार ये क्यों कह रही है कि देखो बूढ़े को तकलीफ ना हो? फिर मैं वहां से चला आया। मेरे कदम आहिस्ता आहिस्ता उठ रहे थे, मगर जहन जैसे शिकस्त खाकर भागा जा रहा था। रात को नींद ने नदामत दूर कर दी, मगर सुबह ही फीका दरवाजे पर मौजूद था। बोला, आप मेहरबानी से दाखिला तो मिल गया था, पर अब उन्होंने बाबा को कोट लखपत के अस्पताल में भेज दिया है। ये तो बड़ा गजब हुआ बाबूजी। आज मैं अम्मा को साथ लेकर गया, 2 रुपए गुल हो गए। कुछ हो सके तो कीजिए। मैंने कहा, मैं अभी जाकर डॉक्टर जब्बार को फोन करता हूं। मैंने फोन किया भी, मगर डॉक्टर साहब मिल ना सके।
फिर मसरूफियतों में बात आई गई हो गई। 5-6 रोज बाद मैंने फीके को देखा तो सोचा कि नजरें चुरा के साथ वाली गली में मुड़ जाऊं और वहां से भाग निकलूं, मगर फीका लपक कर मेरे पास आया और बोला, बाबूजी, समझ में नहीं आता आपके किस किस एहसान का बदला उतारूंगा। झूठ ने मेरी नदामत को कान से पकड़कर एक तरफ हटा दिया। वापस आ गया ना तुम्हारा बाबा? फीका बोला, वापस भी आ गया और ऑपरेशन भी हो गया। जुम्मे को पट्टी खुल रही है, दुआ कीजिए। मैंने कहा, अल्लाह रहम करेगा। फिर वो जुम्मे की शाम को आया तो बोलते ही जार जार रोने लगा। बाबूजी, गजब हो गया, पट्टी खुली तो पता चला एक आंख तो गई ही थी, दूसरी पर भी असर पड़ गया है। कहते हैं अब पहले ऑपरेशन का जख्म मिले तो दूसरा ऑपरेशन होगा और दूसरी आंख का भी होगा। मैंने उसे तसल्ली दी और उसे साथ लेकर सामने ही एक दुकान से डॉक्टर जब्बार को फोन किया, मगर बदकिस्मती से वो फोन पर मौजूद न थे। फिर मैंने उससे वादा किया कि कल जाकर डॉक्टर जब्बार से मिलूंगा, वो अस्पताल में ना हुए तो उन्हें घर में जाकर पकड़ूंगा। दूसरे दिन मैं जा तो ना सका, अलबत्ता डॉक्टर जब्बार को फोन जरूर किया। वो फिर गायब थे। उधर फीका भी गायब हो गया। शायद 2-2.5 हफ्ते बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। नौकर ने आकर बताया कि फीका कोचवान आया है। मैंने भी उसे खिड़की में से देख लिया, बिल्कुल हल्दी हो रहा था। मैंने नौकर से पूछा, क्या तुमने उसे बता दिया है कि मैं मौजूद हूं? जी हाँ, नौकर बोला, बस मेरे मुंह से निकल गया। बड़े अहमक आदमी हो। मैंने उसे डांटा और कहा, जाओ कह दो कपड़े बदल रहे हैं, आते हैं। कपड़े तो मैंने बदल रखे थे, अलबत्ता मैं अपने तेवर बदलने की कोशिश करने लगा। फिर अचानक ख्याल आया कि कितना छोटा आदमी हूं। 2 पैसे या 2 रुपए या चलो 2 लाख की भी बात नहीं, 2 आंखों की बात है और मैं झूठ बोले जा रहा हूं। मुझे फीके के सामने इतराफ कर लेना चाहिए कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। फिर मैंने वो फिक्रे सोचे जो मुझे फीके के सामने इस अंदाज से अदा करने थे कि उसे सच्ची बात भी मालूम हो जाए और उसे दुख भी ना हो। मैं बाहर आया तो फीका बोलते ही जार जार रोने लगा। बाबूजी, कुछ समझ में नहीं आता कि कुछ समझ में नहीं आता। उसकी आवाज भर्रा गई। मेरे सोचे हुए फिक्रे एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए। वह मुश्किल मैंने कहा, फीके बात यह है, फीके के बात यह है। आंसुओं से भीगा हुआ बच्चों की तरह गोल गोल सुर्ख चेहरा लिए फीका उठा और बोला, बाबूजी, कुछ समझ में नहीं आता। मैं शुक्रिया अदा करूं तो कैसे करूं? मेरा बाबा ठीक हो गया है, उसकी दोनों आंखें ठीक हो गई हैं। उसे बिनाई अल्लाह ने दी है और आपने दी है। आपने मुझे खरीद लिया है बाबूजी, कसम खुदा की मैं उम्र भर आपका नौकर रहूंगा। और मैंने एक बहुत लंबी, बहुत गहरी सांस लेकर कहा, कोई बात नहीं फीके, कोई बात नहीं।